स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आज मैथमेटिक्स शुरू कर रहा हूँ। चैप्टर रियल नंबर, क्लास 10 CBSE, चैप्टर 1। पढ़ाने के पहले मैथमेटिक्स का क्या परिभाषा आपको बता दूँ। मैथमेटिक्स इज नथिंग बट it is a branch of science which is the solution of anything. We obtain all things by the mathematics. Now I am starting real number. Here this is the flow chart of real number. Real number is divided into two parts, rational number and irrational number, and the irrational number divided into fraction and integers, and integers divided into negative integer and whole number, and whole number divided into zero and natural number. Now I am discussing one by one. First, natural number. Natural number is counting number, which is 1, 2, 3, 4, up to so on. No greatest number of natural number. This is denoted by capital N. And second is whole number. Whole number, natural number including zero, is whole number. This is denoted by W. And negative integer is -n, -5, -4, -3, -2, -1. This is indicated by Z minus. And integers is natural number and zero and negative of natural number. It means the natural number and negative natural number including zero is called integer. Integer is denoted by I, and this is called positive integer. This is denoted by Z plus. And here is fraction. Fraction is the part of the whole. Suppose this is a square and we divide it into 4 equal parts. Then it is 1 by 4. This is 1 by 4. So the 1 by 4 is the fraction of this whole square. So fraction is not whole number. We can write 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4. This is the this is divided into two parts, positive fraction and negative fraction. Positive fraction, the sign of the numerator and denominator is same. Be like plus 1 by plus 2, plus 2 by plus 3, minus 3 by minus 4, minus 4 by minus 5. Here we see the sign of numerator and denominator is same. Here is also same sign is numerator and denominator. So these are four are positive integer, and negative integer is the sign of numerator and denominator is opposite. Suppose you may write minus 1 by 2, minus 2 by minus 3. It is denoted by Z power minus. So these are the
collection of real number, and here rational number. Rational number, we can say this is written in the form of p by q, where q is not equal to 0, and p and q are integers, and both are co-prime. मतलब कि दोनों को इंटीजर होना चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए, और इन दोनों में जो कॉमन हो वो 1 के अलावा नहीं होना चाहिए. और नॉन रेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर. मतलब जो रेशनल नहीं है वो क्या है, इरेशनल है. एग्जाम्पल √2, √3, √5 etc. And real number. What is real number? Real number is the collection of rational number and irrational number. मतलब सबको जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर. और ये कैपिटल R से डिनोटेड किया जाता है. रेशनल नंबर कैपिटल Q से डिनोट किया जाता है. तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया. 9th क्लास का ही वीडियो मेरे यूट्यूब पर है, आप देख लीजिएगा नंबर सिस्टम में. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि हम लोग बराबर एग्जाम पूछता था कि प्रूव √2 इज रेशनल नंबर. इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? इसको प्रूफ करेंगे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से. हम इसको मान लेते हैं कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है. तो रेशनल नंबर के डिफिनेशन से हम जानते हैं कि रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं. तो √2 = p बाई क्यू लिख सकते हैं. स्क्वायरिंग बोथ साइड, दो तरफ स्क्वायर कर दिए. स्क्वायर जब कर देंगे क्या हो जाएगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √4 हो जाएगा. ऐसा क्या निकल जाएगा, √2 लिख दिया. और यहाँ p², 9 here is 1 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन p², ये हो गया 2q². तो यहाँ आप देखते हैं कि आपका जो 2 है ये p² का फैक्टर है. तो जब p² का 2 फैक्टर होगा तो 2 p का ही फैक्टर होगा. तो हम p को 2m के रूप में लिख सकते हैं. और ये यहाँ पे हम p की जगह पर 2m को पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4m². यहाँ 2k², 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2m² q². तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 क्या है, q² का फैक्टर है. सो 2 इज द फैक्टर ऑफ q². Therefore 2 will be also factor of q. तो हम बताए थे आपको रेशनल नंबर का डिफिनेशन कि p बाई क्यू जो होगा उसमें कॉमन एक के अलावा कुछ नहीं होगा. और यहाँ दो फैक्टर p का भी है, q का है. इसलिए क्या है, ये जंक्शन हमारा जो माने हो गलत है. सो √2 इज ए रेशनल नंबर. तो ये क्वेश्चन बराबर पूछता है. तो √2 या √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, √11 भी हो जाता है. तो इन दिस वे सिमिलरली यू कैन प्रूव, जितना भी आपको दिया जाए प्रूव सकते हैं इजीली. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सपोज 2 नंबर 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 1, एंड 2 को लिख सकते हैं 2 × 1. तो क्या हो गया, ये कॉमन फैक्टर हो गया 2 2 1 1. और इसमें क्या बड़ा है, 2 है, तो 2 क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इसी तरह से आप और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल 2 × 2 × 2 × 1. और मान लीजिए 6 ले लीजिए, 2 × 3 × 1. ये क्या कॉमन है, देखिए यहाँ भी कॉमन फैक्टर आपका है 2 × 1. तो हाईएस्ट कौन हो गया ये, तो इससे निकालिए क्या 2. तो आप यदि आपको दो पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है तो हम आप इजीली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं. सेकेंड टॉपिक है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं एलसीएम. तो मान लीजिए आपको दो नंबर दिया हुआ है तो दोनों क्या करेंगे, मल्टीपल लिख लेंगे. 2 4 6 8
10 दो से मल्टीप्लाई करते जाए, नहीं करते जाएगा, अप टू 16, 18, 20, और 3 का 3, 6, 9, 12, 15, 18, 22, 24, 27 etc। और इसमें क्या देखेंगे कि जो सबसे पहला हमको दोनों में जो कॉमन होगा वो हमारा क्या, देखिए यहाँ पर 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, तो 6 मेरा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। इसी प्रकार से हम मान लीजिए 3 और 4 निकालना चाहते हैं, 6, 9, 12, 15, 18 ये सब लिखेंगे, और 4 को 8, 12, 16, 20, 24। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि 12 मेरा लोएस्ट है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, एलसीएम इक्वल टू 12।